shot by the police. Maya was shocked. Why? She asked. Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. Apartheid means separation on the basis of race. South African people were divided into white, black, Indian and color races. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other, or even to use common facilities. Okay. Maya could not. Yes, very good. Maya could not visible. Maya could not believe her ears. Yes. Maya's mother sounded angry when she spoke about life under apartheid. She told Maya that in those days, hospitals were separate and so were ambulances. Okay. An ambulance means for white people would always be well equipped, while one mean for black people was not. There were separate trains and buses. Even the bus stops were different from black and white people. Okay, very good, very good. So in this lesson, what we are studying there, you have heard the name of Mahatma Gandhi? How many students have heard the name of Mahatma Gandhi? Yes, sir. Okay, who was he? Yes, sir. Who was he? Yes, sir. Sir, great leader of India. Other than this? Sir, great fighter. Other than this? और बताओ इस महात्मा गांधी के. Okay. So this story goes back to Mahatma Gandhi also. How this whole lesson can be linked with the life of Mahatma Gandhi, because it was South Africa, dear, where Mahatma Gandhi went. Yes, Mahatma Gandhi went. बोलो बेटा, मैं बोलता हूँ तो बीच में सुन लेना बेटा, ना तो बाद में डिस्ट्रैक्शन होगा ना, बाद में क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है? ओके बेटा. हाँ, सब लोग माइक अपना म्यूट कर लें. ओके, फिर बाद में आई विल गिव द चांस टू देम. ओके, सो द स्टोरी गोज बैक टू महात्मा गांधी. Mahatma Gandhi went to South Africa, where to fight the case of Dada Abdullah, a merchant from Gujarat. And Mahatma Gandhi was holding the first class ticket, and he was sitting enjoying the journey, no issue. But suddenly next bus train station, this next station, English person, white person you can say, he entered, and he was surprised that how a black person can sit in the first class train. He was astonished how he dared to sit like this. But Mahatma Gandhi was unaware of the fact about the discrimination in South Africa. Though he might have told by his colleagues, but still he was a different kind of person. So when he was sitting and he was just arguing with the white people that yes, I am holding the first class ticket and I can sit, I have every right, I am lawyer. All these arguments he was placing in front of white people. But suddenly 2 or 3 white people and some policemen came, and he was thrown out of the train, his luggage was thrown out of the train, and he spent the whole night in the cold. It was a winter season, and he suffered like anything. This was the story of South Africa through Indian leaders, through the Mahatma Gandhi's life. I tried to make you understand or sensitize you with the kind of discrimination African native people were facing. Native people, I am adding the word, emphasizing the word native people. जो वहाँ के मूल निवासी थे, उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज था, उसकी चर्चा हम महात्मा गांधी के माध्यम से हमने जोड़ने का प्रयास किया. अब आते हैं इस लेसन के ऊपर. माया नायडू एक लड़की है जो 11 साल की उम्र की है और लगभग आप ही की उम्र की होगी.
सब लोग ध्यान दे पढ़ाई पर, दक्ष है ना। और ये साउथ अफ्रीकन गर्ल्स जो है वो अपने मदर के साथ है, जैसे आप लोग दक्ष जो है कुछ कुछ खुराफात कर रहा है, आदित्य कुछ करता होगा, मानस मानव भी करता होगा, और बाकी बच्चे भी अपनी उम्र में छोटे जो थोड़े बहुत खुराफात बच्चे करते ही हैं। जब मदर का बॉक्स खुलता है तो सारे बच्चे जो है ना, ये इस उम्र के जो है आपकी उम्र के बच्चे ना उसमें झांकने लगते हैं। दे स्टार्ट पीपिंग इनटू द मदर्स बॉक्स कि मम्मी ने क्या रखा है अपने बॉक्स में छिपा के, क्या क्या होगा आइटम। मदर कुछ खोलेंगी तो उसमें से कुछ निकालना, फिर मदर डांटती होंगी, या दादी के साथ ऐसा होता है। हाँ, हुआ होगा। ये पॉइंट आप लोगों का। तो उसी तरह माया नायडू भी एक लड़की है जो जोहान्सबर्ग में रहती है, और उसकी मदर जो है अचानक एक अपना बॉक्स क्लीन कर रही थी, तो उन्होंने बॉक्स अपना पुराना बक्सा खोला हुआ है, ठीक है। उसमें से बहुत सारी पिक्चर्स उसको दिखाई देती है, और उस पिक्चर्स पर कुछ एक दो तीन बच्चों की पिक्चर्स हैं, जिसमें एक हेक्टर पीटरसन नाम का एक बच्चा है जिसके बारे में उसकी मदर बताती हैं, ये दिस बॉय इज हेक्टर पीटरसन। और इसके बाद दोनों के बीच में वार्तालाप होता है, तो उसमें एक वर्ड आपकी बुक में दिया हुआ है, अपार्थीड। और उस कहानी को बताते बताते माया नायडू की जो मदर है वो बिट सी बिकम्स इमोशनल, और गुस्से में भी थोड़ा आती है कि क्यों इतनी मेरी बेटी पूछ रही है, क्योंकि वो बताना नहीं चाहती। जब कभी लाइफ का बिटर एक्सपीरियंस होता है ना, तो बड़े बुजुर्ग जो है ना उस घटना को छिपा ले आते हैं, उसको बताना, शेयर नहीं करना चाहते हैं कि बच्चों की मेमोरी पर, माइंडसेट पर बुरा असर पड़ेगा। तो शायद कुछ इसी तरह का हो रहा था। माया नायडू की मदर है, माया नायडू से वो शेयर नहीं करना चाहती थी, बट स्टिल किसी तरह बात निकलती है और बताई जाती है, और पता चलता है कि अपार्थीड एक प्रकार की प्रैक्टिस है जो साउथ अफ्रीका के जो नेटिव लोगों को सफर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके स्किन का कलर क्या है? ब्लैक है। उनको अलग तरह की कॉलोनी में रहना पड़ता है, उनके लिए अलग बस स्टॉप बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो वीआईपी हैं इसलिए बने हुए हैं, वीआईपी हो बने हो तो अलग बात है, वो वीआईपी नहीं है। दे आर इल ट्रीटेड, बैडली बिहेव्ड, दे आर डिवाइड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बेसिक अपॉर्चुनिटीज इवन यू कैन से। और इस तरह से उनकी जिंदगी चलती है, और उनकी जिंदगी बहुत ही दयनीय होती है। हेलो पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है। उनके लिए अलग तरह के डॉक्टर्स, ये सारी कुछ है जो मिनिमम लेवल है, जो लो लेवल है, दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज दे आर बाउंड टू बी गिवन। ओके, सो ब्लैक पीपल की लाइफ इतनी मिजरेबल है विच वी कैनॉट इमेजिन। अगर हम आज की बात करें कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, अगर आपको आज तो आपके पास प्लेन है, ट्रेन है, बसेस हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अगर मैं कहूं कि आदित्य को अपने गांव जाने के लिए इनके दादा के परदादा जो है ना, इतना दूरी ट्रेवल करने में कम से कम 6 महीने 4 महीने लग जाते थे। ये पॉइंट। और अपने ग्रैंड मदर से पूछना या मदर से पूछना कि पहले के लोग जब कहीं जाते थे ना तो वो 10 दिन 5 दिन रुक जाते थे। कारण क्या था? कारण यही था कि दूरी इतनी ज्यादा होती थी कि जाने में ही बहुत ज्यादा समय लगता था, तो जाने के बाद तुरंत वापस आना मुश्किल होता था। इस तरीके से और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये इस तरह के भी कारण थे जिसकी वजह से लोग वहां पर काफी दिन तक ठहरते थे। यहाँ मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि आप इमेजिन करना आपके लिए मुश्किल होगा कि पहले के जमाने में, पहले के उन ओल्डन डेज, हाउ पीपल वर लिविंग, देयर लाइफ वाज वेरी डिफिकल्ट। क्लियर पॉइंट? मेरी बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. हाँ, एंड लाइफ ऑफ द ब्लैक पीपल वाज हॉरिबल, वाज वेरी हॉरिबल। अब देखो, अब आपके पास एक कोई बच्चा मुझे बताया कि what will happen, what change will take place in their political life। जब 18 साल के हो जाएंगे तो सरकार उनको एक राइट देती है, उसको क्या कहते हैं? 18 साल के जब हो जाएंगे तो आपको सरकार अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का एक राइट देती है। उस राइट को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल वोट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वेरी गुड, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जब 18 साल का आदित्य हो जाएगा,
जब 18 साल का मानव हो जाएगा तो उसको एक वोटर आईडी उसकी बन जाएगी, वो वोट देगा, वो अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। गेट योर पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हो? और आपको एक अलग फीलिंग होगी, यस आई कैन कंट्रोल, देन यू विल बी द पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप। ओके, यहां पर नॉन, अब मानो पढ़ो बेटा। आदित्य, आप व्हाट विल डू, आप बच्चों के नाम थोड़ा देख लो बेटा कौन कौन है, और उनको 1 by 1 हम पढ़ने के लिए देंगे। चलो मानो पढ़ेंगे बेटा। नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। सर मेरे यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज बहुत है। ओके, कोई बात नहीं। चलो कौन पढ़ेगा? परवनी पढ़ो बेटा। यस सर हर मदर से पढ़ना है। हाँ, नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। नॉन वाइट से पढ़ो। नॉन वाइट वर नॉट अलाउड टू वोट। The best land in the country was reserved for the white people, and non-whites had to live on the worst available land. Thus, blacks and colored people were not considered to be equal to whites. मतलब कुल मिला के ये है कि there is a superiority complex among white people, and they were not allowed to mingle up because they were superior. They were not black people were not allowed to mingle up because they are inferior. Okay, चलिए आगे बढ़िए बेटा। One black township was the south western township Soweto. Hector Peterson, हाँ पढ़िए बेटा, start Peterson lived here and he had his classmates joined the protest against learning the Afrikaans language in the school. Yes. This was the language that the whites spoke. Yes. Hector and other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language, Zulu. Okay, so अफ्रीकन जो लोग था उनका मूल लैंग्वेज क्या था? ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था? व्हाट वाज द लैंग्वेज? जुलू. Okay? Zulu. Yes. Zulu. Yes, and they were, yes, very good. They were forced to study to learn the language Afrikaans language, which they were not willing to. ठीक है, वो willing नहीं थे, and it was very difficult for them to understand. आज आपके पास जो भी फॉरेन लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ना तो आपके लिए पास सारी सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑल फैसिलिटीज, लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं आपको हिंदी नहीं पढ़ना, अंग्रेजी में ही पढ़ना है, तो दैट ऑल्सो इट इज बैड, बिकॉज हिंदी इज आवर कंट्रीज लैंग्वेज एंड समबडी इज फोर्सिंग अस टू स्टडी द फॉरेन लैंग्वेज, सो इट इज नॉट गुड. It is not good for a country, because if language dies, okay, if the language dies, then the whole culture dies. Okay, इसलिए अपने लैंग्वेज को बचाना, अपने लैंग्वेज को बढ़ाना, अपने लैंग्वेज को बाइंड, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. चलिए आगे पढ़िए. The South African police beat up the protesters mercilessly and shot at the crowd. One of their bullets killed Hector. This was on 16 June 1976. The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid. Yes. And their most well-known leader, Nelson Mandela. Mandela. Fought the apartheid system for several years. Yes. Finally, they succeeded in year 1994.
South Africa became a democratic country. A democratic country which people of all races were considered equal. ओके बेटा, ओके, चलो। तो ये घटना है जब 16 जून 1976 की, जब एक स्ट्राइक हुआ, एक रैली निकली और उसमें हेक्टर की जान चली जाती है। अब इस तरह की बहुत सारी घटनाएं अफ्रीका में हुई और उनके एक महान नेता थे नेल्सन मंडेला, जो कि नॉन वायलेंस का जो प्रिंसिपल था महात्मा गांधी का, सत्य और अहिंसा का जो सिद्धांत था, उसको उन्होंने अपने जीवन में फॉलो किया और उन्होंने काफी समय तक वो जेल में रहे। कहा जाता है कि 28 years he spent in jail. 28 साल वो जेल में रहे। And he was a great follower of Mahatma Gandhi, and finally, because of his efforts, 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. मतलब सबको बराबर का अधिकार मिल गया। तो साउथ अफ्रीका एक बेटर, साउथ अफ्रीकन लोग के लोग जो थे, साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, वे खुली हवा में सांस लेने की स्थिति में आ गए। यू माइंड? चलिए, सो लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स टू ऑल ऑफ अस। हमारे लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या है? अगर हम इंडिया को, अब नाउ यू स्टार्ट कंपेयरिंग, इसलिए लेसन बहुत जरूरी है बेटा। हम कंपेयर करना शुरू करें कि हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं, इज इट रिलेटेड विद दिस लेसन और नॉट? ओके, क्या इस लेसन से जुड़ा हुआ है या नहीं है? ओके, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे अभी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज, ज्योतिका है क्लास में? Yes, sir. चलो पढ़ो बेटा। Participation. Why do we have regular elections? You have already read in the previous chapter that people make the decision in a democracy. Through voting in elections, people elect leaders to represent them. These representatives take decisions on behalf of the people. In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voices and interests of the people. All governments are elected for fixed periods. In India, this period is 5 years. Once elected, governments can stay in power only for that period. If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people. This is a moment when people can sense their power in a democracy. In this way, the power of the government gets limited by regular elections. ओके, चलिए, तो ज्योतिका ने हमें बताया कि पार्टिसिपेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है बेटा, कोई मुझे बताएगा? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपुल हैव राइट टू इलेक्ट देयर लीडर्स। ठीक है, ये एक प्रकार की सरकार है जिसको हिंदी में कहते हैं जनतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? जनतंत्र। जन मीन्स लोग, तंत्र मीन्स सिस्टम, लोगों का सिस्टम। मतलब लोगों का सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि लोगों का पार्टिसिपेशन हाई हो। ऑन दैट सेम थिंग वी आर स्टडीइंग हियर। आप देखते हो, आपकी मम्मा, आपके पापा, आपके दादू, आपके नानू, आपके मम्मू, एवरीबडी इज वोटिंग और नॉट? सब लोग वोट करने जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ festival. It is just like a festival. Voting day became the festival of in India. Why? Because if you are not voting properly, means if you are not choosing your leaders properly, then you are going to spoil not only your life but also the life of coming generation. So we have to be very very wise, very we should use our wisdom, we should be very alert while we are casting our votes. Participation. So elections are the means, or you can say elections are the tools by which people take part in the democratic setup. लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे आसपास जो रिप्रेजेंटेटिव दिखाई देते हैं, चाहे वार्ड के हों, चाहे वो एमएलए हों,
whether they are MP, they all are elected with this tool only, that is participation, and that is through voting. Okay, और हमारे यहाँ वोटिंग अभी आपने बताया कि वोटिंग कितने साल में होती है? 5 years. 5 years. 5 Very years. good. Every 5 years. Every 5 years. No, every 5 years we have. 5 years. Okay. 5 years. Okay, thank you. Every 5 years we are given the right through our constitution that we can elect our leaders. और वही एक मौका ऐसा होता है जब हम बहुत सोच समझकर अपने नेताओं का चुनाव करें, जो हमारे वेलफेयर, जो देश के वेलफेयर, देश की भलाई और जो करप्शन फ्री हों. Get it point? So voting is a very important tool. Get it point? तो जब 18 साल के आप हो जाएंगे तो आप लोग वोट दोगे ना? Will you? Yes, sir. Okay, very good. Okay, तो चलो हमने अब अपने बच्चों से को देख लिया कि हमारे सारे बच्चे वोट देंगे जब 18 साल के हो जाएंगे. तब तक मैं बिल्कुल बूढ़ा हो जाऊंगा. चलो, सो अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, और दूसरे क्या तरीके हैं पार्टिसिपेट करने का इस डेमोक्रेटिक सेटअप पे? उसके लिए हम किसको बुलाएं? कौन पढ़ेगा बेटा? हु विल स्टडी? जल्दी बताओ, कौन है क्लास में? जल्दी बताए तो बेटा. Sir, can I read? हाँ वेगा, चलो स्टार्ट बेटा. वेरी गुड. Okay, sir. Other ways of participating. Elections are usually held once in 5 years. Besides voting, there are other ways of participating in the process of government. ओके बस 1 मिनट. वेगा, वेरी गुड. बहुत बढ़िया पढ़ रही हो बेटा. वेरी गुड, नाइस. ओके, सो वेगा से हम एक जानकारी लेना चाहेंगे. वेगा बताओ, हमारे और केंद्रीय विद्यालय इज अ you can say the mini India. Classrooms are like mini India where people from different states are living. तो हमारी वेगा बेटा आप तो केरला से हैं, हाँ ठीक है. तो ये बताओ आपके यहाँ चीफ मिनिस्टर कौन है? सर पिनराई विजयन. हाँ वेरी गुड. देख लो, तो ये विजयन जी, वो कौन सी पार्टी से हैं बताओ? Can you repeat it, sir? From which party he belong? Sir, LDF. Okay, very good. Yes, she is very politically, she is very aware. Okay, चलो start reading. Okay, start. People participate by taking an interest in working of the government and by Criticizing. criticizing it when required. In August 2005, when a Okay, particular so listen. हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा. देखो वेगा से मुझे एक जानकारी मिली कि पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड. तो लोग सरकार की आलोचना करते हैं, और टीचर आलोचना करेगा तो बच्चों को बुरा लगना चाहिए. बोलो, लोग सरकार की आलोचना करते हैं और टीचर आलोचना करे तो बुरा लगना चाहिए? No, sir. नो लगना No, चाहिए. sir. अच्छा चलो ठीक है. ओके बस. चलो, आलोचना हमारे भले के लिए हो तो वो आलोचना हमारे लिए अच्छी है. करेक्ट पॉइंट. लेकिन आलोचना भी सकारात्मक होती है और नकारात्मक भी होती है. सो ऑलवेज वी शुड पास पॉजिटिव कमेंट्स. ओके, वेदर इट इज मी और वेदर इट इज यू. ओके, चलिए. इन अगस्त 2005, पढ़ो बेटा वेगा. Okay, sir. In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. हाँ, They took हाँ वेरी गुड. सरकारें जब किसी चीज की कीमत बढ़ा देती हैं, जैसे हमारे देश में भी बीच में जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई हैं अभी, या इससे पहले प्याज की कीमतें बहुत, अनियन प्राइसेस बहुत हाई थे, या इस तरह की बहुत सारी चीजों की कीमतें हाई होती हैं. तो लोग पीपल हैव द नेचुरल टेंडेंसी टू ऑब्जेक्ट इट एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. एंड यस, इट इज राइट ऑल्सो व्हेनेवर दिस हैपेंस. पॉइंट. कभी कभी चीजें प्राइसेस जो हैं वो बहुत सारे कारणों से हाई होता है. जैसे मान लो कि अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना. जैसे एक तो कारण तो
है कि अब बहुत सारा वर्ल्ड में देखो अलग अलग कंट्रीज में वॉर हो रहा है, रसिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, या इस तरह के और भी कारण हैं जो ग्लोबल इशूज से रिलेटेड हैं, कैन यू माइंड। तो बट पीपल हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट वेन एवर थिंग्स हैपन रॉन्ग, वी मस्ट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट सो दैट दे शुड मूव, दे शुड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। चलो आगे पढ़ो बेटा। They took out rallies and also organized its signature campaign. Okay. The government tried to अब रैलीज भी ऑर्गेनाइज करते हैं लोग। आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज सड़कों पर निकलते हैं और रैलीज को ऑर्गेनाइज करते हैं ना। जैसे अभी आप लोगों ने स्कूल में एक देखा था ना, कौन सा रन हुआ था, यूनिटी रन। आपने देखा था स्कूल में यूनिटी रन हुआ है। हाँ, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ डे के ऊपर। हाँ, तो उसी तरह हाथों में प्ला कार्ड लेके, उसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज भी इस तरह का रन, they organize such run or they walk, you can say demonstration, and they are keeping the placard by their supporters are keeping the placard, and they are showing to the people that this government is not working, the price is rising, like anything, so many things they do. Okay, so it is the part of our democratic setup. People have the all right to all things. If the problem is not solved, then also they start the signature campaign. They will put the signature of different people will put the signature, and they will give the memorandum, you can say they will write application to the concerned authorities to show that we are not happy with this situation and the situation needs to be changed. Okay, chalo start. The government tried to explain and defend its decision, but finally listened to the people's opinion and withdrew the increase. The government had to change its decision, but because it is responsible to the people. Yes, if the decisions taken by the government is wrong and people are unhappy with those decisions, the government, they put pressure on the government, and government finally forced to withdraw all those things which they have increased. For this case, the price rise in electricity. Okay, so let's start. There are many ways in which people express their views and make governments understand what actions they should take. This include dharnas, rallies, strikes, signature campaigns, etc. Things that are unfair and unjust are also brought forward. Newspapers, magazines, and TV also play a role in discussing government issues and responsibilities. Okay, very good. Why? देखो, yes, very good. So बहुत सारे तरीके हैं. There are different ways through which people can express their views to aware the government and to bring their notice towards the problem. Okay, बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से लोग सरकार का ध्यान अपने इश्यूज के ऊपर कर सकते हैं, ला सकते हैं, जिसमें धरना है, रैलीज है, स्ट्राइक है, सिग्नेचर कैंपेन जिसकी चर्चा की हमने। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे डिबेट होता है किसी भी टॉपिक पर, हम डिबेट और देखा होगा आपने टीवी में या रेडियो में, हाँ, इस तरह के डिबेट, या मैगजीन में या न्यूज़पेपर में किसी न किसी टॉपिक पर वो लिखते हैं, लिखने वाले लोग लिखते हैं, बोलने वाले लोग बोलते हैं, और इन सब के माध्यम, और सुनने वाले लोग सुनते हैं। तो जो बोलने वाले हैं और वो बोलते हैं और जो सुनने वाले सुनते हैं। इससे क्या हुआ कि बोलने वाले के पास जो नॉलेज है, जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो हम लोग उसको बार बार सुनते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ, यस, दिस इज रॉन्ग, ऐसा हो रहा है वास्तव में। तो इससे सरकार के खिलाफ एक ओपिनियन बनता है, यानी पॉइंट। और सरकार को लगता है कि अगर हमने ये काम किया तो हम अगले इलेक्शन में जीत नहीं पाएंगे। तो सरकारें क्या होती हैं, वो डर जाती हैं, वो फोर्स की जाती हैं कि वो अपने डिसीजन को विड्रॉ कर लें। चलिए, इफ अ कंट्री, हाँ चलो नीचे, हाँ, ओके ओके। While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so. Another way for people to participate is by organizing themselves into social movements that seek to challenge the government and its functioning. Members of the military community, Dalits, advises women and
others are often able to participate in this manner. ओके, सो इसमें लिखा गया ये कि ये बात सही है कि डेमोक्रेसी लोगों को चांस देती है, लोगों को मौका देती है कि दे कैन पार्टिसिपेट. इट इज ट्रू दैट डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट बिकॉज वी हैव द से इन डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेसी का बहुत बढ़िया एक जो सेंटेंस मुझे लगता है, डेमोक्रेसी अलाउज अस टू डिसएग्री. ठीक है, एग्री टू डिसएग्री. हाँ, हमको डेमोक्रेसी में हम इस बात के लिए एग्री होते हैं कि हाँ हम आपसे डिसएग्री हैं, हम इस बात के लिए एग्री हो सकते हैं. मतलब पीपल, एवरीबडी हैज देयर से इन द डेमोक्रेसी एंड दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज गुड. हो सकता है कि I हम, know that. हाँ, yes, it is possible that we are not able to grow like China or some other countries, but I am able to express my feeling. That is the most important thing, which is not in the neighboring, some of the neighboring countries, and that's why we are good. We are happy in the democracy. Okay. इसके अलावा जो हम, जब हमारी बातें नहीं मानी जाती तो लोग मूवमेंट बनाते हैं. एक मूवमेंट क्या होता है? When group of people have certain objectives, it becomes a movement. एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो वो मूवमेंट बन जाता है. तो इस तरह के मूवमेंट हमारे देश में चलते रहते हैं. जैसे दलित लोग हैं, जो सप्रेस्ड सोसाइटीज हैं, जो सप्रेस्ड कम्युनिटीज हैं, आदिवासीज हैं, महिलाएं हैं, वो सब एकजुट होती हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए. ओके, नेक्स्ट. If a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will stronger. Can you find? अगर सारे लोग अलर्ट हैं, ठीक है, सारे लोग प्रोसेसेस को जानते हैं, सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो कंट्री स्ट्रांग होगी और उस कंट्री के लोग के वेलफेयर के लिए ज्यादा काम किए जाएंगे. ठीक है, ओके. सो द नेक्स्ट टाइम we see a rally winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it, and what they are protesting about. This will help to give us a sense of how our government works. अब अगर क्या चाह रहा है इसमें कि अगर अगली बार आपको लगता है कोई इस तरह की रैली हो रही है, कोई इस तरह गांव में या शहर में कहीं भी, तो आप एक मिनट रुक जाओ और जानने का प्रयास करो कि ये घटना किस लिए हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है, और इसके माध्यम से आप और अपने आप को इन्वॉल्व फील करोगे और आपके अंदर का जो सेंस है, पॉलिटिकल सेंस है, ठीक है, वो और डेवलप होगा और गवर्नमेंट की वर्किंग को आप अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट, हु विल रीड? नेक्स्ट, हर्षित will read. कौन पढ़ेगा भाई? So can I?